हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। मैं आपका साइंस टीचर डॉक्टर प्रियरंजन झा। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मैंने इस चैप्टर को टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियो क्लिप में बांट दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना ताकि और स्टूडेंट्स को भी लाभ हो। यह वीडियो लेसन टीचिंग पूर्णतः एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित है। मैं विगत 12 वर्षों से सीबीएसई और बीएसईबी के क्लास 9, 10, 11 और 12 के स्टूडेंट को पढ़ाते आ रहा हूं। स्टूडेंट्स मुझे फिजिकली बहुत पसंद करते हैं और आशा करता हूं कि आप लोग भी मुझे पसंद करेंगे। आज का क्लास शुरू करते हैं। आप लोग अपने अपने नोट कॉपी को निकाल लें, पेन ले लें और बोर्ड पे जो मैं पढ़ाते जा रहा हूं आप उसे अपने नोटबुक पे लिखते रहेंगे। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो ऑल द प्रोसेस दैट अंडरगोज इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म during its lifetime are called life process। वे सारी प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसके पूरे जीवन काल में चलता रहता है उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अगला पॉइंट, बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या है जो हमारे शरीर में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, वो है क्या? Performed by living organism, basic life process performed by living organism are movement। living organism move करती हैं। living organism respire, respiration। living organism grow, growth is a life process। living organism reproduce, reproduction is life process। living organism need food, they intake food, nutrition is life process। and living organism excrete waste material from their bodies, the excretion is life process। These are the basic life process: movement, respiration, growth, reproduction, nutrition and excretion। Now come to the next point. According to NCERT book, the question is, what is alive and what is not alive? How can we say one thing is alive or not? Is this pen sketch alive or not? When we see a dog running, we see a cow chewing cud, we see a man laughing, we see various works performed by different organisms, we see that they are alive। means work denotes, function denotes that a thing is alive। but one contradiction is here। if the dog, the cow, the man is sleeping, अगर हमने कहा था कि अगर मैं कुत्ते को दौड़ते देखता हूँ, गाय को चारा खाते देखता हूँ, एक इंसान को हंसते देखता हूँ, बच्चे को खेलते देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि वह अलाइव है। मगर अगर वह कुत्ता, डॉग, वह गाय, काऊ या वह आदमी सो रहा है तो हम क्या करेंगे? हम क्या कहेंगे? मैं वह अलाइव है या अलाइव नहीं है? ये फिर एक कॉन्ट्राडिक्शन का क्वेश्चन होता है। इसका आंसर हम लोग ऐसे देखेंगे, सीइंग देम ब्रीदिंग, हम देखेंगे क्या वो ब्रीथ कर रहा है कि नहीं, सांस ले रहा है कि नहीं। अगर वह सांस ले रहा है तो उसके रिब्स में मूवमेंट होगा, लंग्स के मूवमेंट के चलते रिब्स में मूवमेंट होगा जो हमें आंखों से दिखेगा। अगर मूवमेंट होगा तो हम कहेंगे कि वे अलाइव हैं। यदि मूवमेंट
नहीं होगा तो हम कहेंगे कि वो अलाइव नहीं है। Thus, movement is a criteria for saying organism alive or not alive. अगर मूवमेंट होता है तो हम कहते हैं कि लाइव है, नहीं होता है तो हम कहते हैं लाइव नहीं है। आप बोर्ड पर जो टेक्स्ट हमने लिखा है इसे नोट डाउन करें, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। नाउ कंसीडर अनदर केस, प्लांट्स। We take the example of plants. Are plants alive or not? How can we say that plants are alive? We can say that leaves of plants are green. The leaves of plants are green, hence alive. But what about the plants without green leaves? Are they dead or alive? So, green is not the criteria to define plants living or non-living. Another criteria to say plants are alive is growth and movement. But the growth and movement of plants are not visible to our naked eye as they are very slow. So, we cannot say, taking the criteria of only movement, that plants are alive. Movement of molecules. Now we are coming toward another topic, defining alive or not alive. That is movement of molecules. Movement of molecules inside an organism. Every living organism, movement of molecules take place, but they are invisible by naked eye. We cannot see it. But the molecular movement exists in an organism throughout its lifetime. But it is not visible to us. So, we can say that movement is not the only criteria. Movement is not the only criteria to define alive or not alive. आप लोग इसे नोट करें, फिर मैं आप लोग के साथ आ रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, वायरस, VIRUS। हमें उम्मीद है कि इस टर्म से आप लोग सब परिचित होंगे। आज पूरे विश्व में वायरस से आक्रांत है, कोरोना महामारी फैली हुई है। उस वायरस के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे। वायरस के बारे में है, दे डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट। वायरस में कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं दिखता है, वो डेड के समान पड़े रहते हैं। अनटिल दे इन्फेक्ट होस्ट सेल, जब तक ये किसी लिविंग सेल को इन्फेक्ट नहीं करते हैं, इनमें कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है। जैसे ही यह लिविंग सेल में इन्फेक्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। सो देयर इज ए कंट्रोवर्सी, इस पे एक कंट्रोवर्सी है, एक चलन है कि क्या वायरस ट्रूली अलाइव है या नहीं है, वायरस लिविंग है या नहीं है, वायरस जीवित है या नहीं है। क्योंकि अब इसका अगला पॉइंट को भी आप नोट करेंगे, वायरस आउटसाइड एंड होस्ट सेल, बहुत बड़ा इसका एक क्राइटेरिया है कि वायरस आउटसाइड एंड होस्ट सेल डेड, ये बाहर पड़ा रहता है, ये हमारे हाथों पे पड़ा है, यह डेड है, इसमें कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं है। बट लेकिन as soon as, जैसे ही यह इंटर्स इनफैक्ट ए होस्ट सेल, यह होस्ट सेल में इंटर करता है, हमारे आंखों के द्वारा, नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, कहीं से अगर ये हमारे बॉडी में इंटर करता है, इट बिकम्स अलाइव, यह जीवित हो उठता है और रिप्रोडक्शन प्रोसेस शुरू कर देता है। सो यही कारण है कि
वायरस आर सेड टू बी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, वायरस को माना जाता है कि यह एक कड़ी का काम करता है किसके बीच, लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच को जोड़ने में एक कड़ी का काम करता है। नॉन लिविंग वायरस किस स्थिति में रहता है, मगर जैसे ही लिविंग होस्ट मिलता है वायरस भी लिविंग हो जाता है। सो वायरस आर सेड टू बी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है। कैसे? तो सबसे पहले हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। दैट इज सेल। सबसे छोटा यूनिट लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल है। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक घर को बनाने के लिए सबसे छोटे यूनिट जैसे ईंट की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बना होता है वह छोटे 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 सेल के जुड़ने से बनता है। यह रैंडमली कैसे आगे जाता है हम देखेंगे। बहुत सारे सिमिलर टाइप, सिमिलर फंक्शन वाले सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन बनते हैं। बहुत सारे ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। अब रह गई बात कि यह लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है काम होते रहता है तो वियर एंड टियर सेल्स में होता है। अब इसको मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी में रिपेयरिंग वर्क भी कंटिन्यूअस होते रहता है थ्रू आउट द लाइफ टाइम। जो हमारा अगला पॉइंट है, टू मेंटेन द ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग, रिपेयर और मेंटेनेंस अंदर उसके बॉडी में होते रहता है, कंटिन्यूस लगातार चलता रहता है इनसाइड द लिविंग बॉडी थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन भर कार्य होते रहता है। और वियर एंड टियर एक तरफ होता है तो दूसरी तरफ रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वर्क होता है। और इस प्रकार जो है हमारी एक लिविंग बॉडी जब तक जिंदा रहता है तब तक कार्य करते रहता है। अब आप लोग इसे नोट कर लें। क्लास 10 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे टॉपिक 6.1 एनसीईआरटी बुक के अनुसार। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।